So, hello viewer, welcome once again with very new and informative topic on my YT video. In Bangalore, why the builders are being given a free hand by the state government or central government, even they do not have proper approval, and why they are being allowed to launch a project, and whereas at the end game, all thing is left to buyer to just get approval, to check approval. My question is that why the builders, if they are not having proper approvals, let it be STP, let it be so many things like amenities, outdoor, indoor, structural quality, NOC, OC, CC, NGT clearance, then why at all the government, RERA, why they do not control, why there is not a launch procedure where the builder can be stopped if they are not having, they are not meeting the, Karnataka rules and regulation or RERA, why they are being allowed, and ultimately the buyer left alone in the field to suffer. So be with this video. This is going to be very informative for investors who are searching or wanted to buy a home, and also to existing buyer though who are there in the lurch of this situation. So be with that, and also kindly do subscribe and share to your contact and friend so that this information can reach to them also. So imagine investing your crores of rupees hard earned money and to in booking for dream home, and then finally after possession you find so many things happening, no proper STP or drainage. In Bangalore, as you see, there is no proper drainage system in the Bangalore. Still the builder is being allowed to launch the project, to construct the project, and then last sufferer is only wire. Amenities incomplete, OC, CC delayed, legal issue is still pending. Then also the pre-launch or launch is happening. Why does this happen, especially in city, metro city, Bangalore, which is a IT city known as, where the number of state people are coming in lakhs and making dream to make their home, buy their homes. Today we expose the reality of the behind gated community and ask the most important questions. Why are builders not held fully responsible before launching the a project? Here I will just show you the problem which I have noted down. There is nexus. Bangalore has been seeing explosive growth. As I told, in real estate, thousands of gated apartments are launched, and every year, but behind glossy brochures where the salesmen show the dreams to the buyers and sample, and without any trouble, and then project launch without complete approvals, infrastructure not ready, amenities only promised on the paper, resident left struggling after possession. So, and the biggest concern is why such, project allowed to be launched in the first place? Why they are not being stopped? Why not the builders are being responsible for all the things? So we'll just the approval system explained. Now, how the approval system is going in Bangalore, and why it is not being checked by government or RERA or central government. Let us understand how the system supposed to work. कैसे सिस्टम को वर्क करना चाहिए, क्यों बिल्डर को जो है फुली रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, क्यों गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम करोड्स ऑफ हार्ड एंड मनी बायर्स का लगा हुआ है. बिफोर लॉन्चिंग ए प्रोजेक्ट, ए बिल्डर शुड आइडली मूव, हैव लैंड टाइटल क्लियर, उसके पास लैंड टाइटल क्लियर होना चाहिए, जो कि नहीं होता है. बिल्डिंग प्लान अप्रूवल होना चाहिए. एनवायरमेंट क्लियरेंस, लेट इट बी एनी टाइप, सेंटर और स्टेट, एनजीटी क्लियरेंस, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्लियरेंस होना चाहिए, सो दैट फर्दर कोई पॉल्यूशन वगैरह का. So I told you, and then WTB water treatment plant is not available, structure safety certification is not there, and under the Karnataka RERA project must be registered before being marketed. इनको नहीं खुली छूट देनी चाहिए कि जब आपके पास ये अप्रूवल नहीं है तो आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं. And under the RERA, Karnataka RERA project
must be registered before announcing the project. RERA was introduced for the purpose of buyer safety also and builder safety also, as a transparency between builder and home buyer. What here is the gap? What is that gap? RERA primarily check documentation, not fully on the ground activity. बिल्डर क्या ग्राउंड पे कर रहा है, रेरा वो चेक नहीं करता है. ये गैप का फायदा बिल्डर उठाता है. मेनी अप्रूवल्स आर कंडीशनल और पार्शियल. बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं अप्रूवल कंडीशनल होते हैं और जो है उसका जो है पार्शियल होते हैं. एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लूजली इन्फोर्स्ड ऑन द बिल्डर. जो एग्जीक्यूशन करना है, जो बिल्डर बोलता है बायर को, वो बहुत ही लूजली बिल्डर के ऊपर है. सो टेक्निकली ये प्रोजेक्ट कैन बी अप्रूव टू लॉन्च बट नॉट फुली रेडी इन रियलिटी. वो ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जब ये अप्रूवल नहीं भी है तो उसको लॉन्च किया जा सकता है. इस गैप का फ़ायदा जो है बिल्डर उठाता है. अब मैं आगे बताता हूँ वाई बिल्डर्स आर नॉट फुली अकाउंटेबल. इतना हो जाने के बाद भी अप्रूवल नहीं है, STP WTP नहीं है और NGT क्लियरेंस नहीं है, रेरा जो भी है, हाउ दे आर गेटिंग द अप्रूवल्स, वाई दे आर बीइंग अलाउड. नंबर वन फेज्ड अप्रूवल सिस्टम. बिल्डर गेट अप्रूवल इन स्टेजेस अलाउइंग अर्ली लॉन्च. उनको अप्रूवल जो है टोटल प्रोजेक्ट का नहीं मिलता है. मतलब वो उनको फेजेस में अप्रूवल मिल जाता है, तो फेजेस का फ़ायदा गैप होता है उसमें. नंबर 2 रेवेन्यू प्रेशर. प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन बायर्स फंडिंग, अर्ली सेल्स फाइनेंस कंस्ट्रक्शन, वीक इन्फोर्समेंट. जो उसको करना चाहिए, इवन इफ रूल एग्जिस्ट, इन्फोर्समेंट एंड डिले आर इनकंसिस्टेंट. लूप होल्स इन कंप्लायंस. बहुत से ऐसे लूप होल हैं जिसका बिल्डर फ़ायदा उठा लेता है. बिल्डर पेपर में तो दिखाता है बट अप्रूवल कायदे से नहीं हो पाता है. लिमिटेड बायर अवेयरनेस. और जो हमारे बायर हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बोलता आया हूँ, बायर को बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होती है रियल एस्टेट, क्या अप्रूवल लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. वो क्राउड पुलिंग टाइप मार्केटिंग के सेल्स पे वो चले जाते हैं एंड दे डोंट. द रिजल्ट उसका क्या होता है, ये सारे सब करने के बाद बिल्डर शिफ्ट रिस्क टू बायर. जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज़ है, STP का एग्जिट नहीं हो रहा है, फायर सिस्टम में रॉन्गली प्लेस्ड है, आपका एमिनिटीज इंडोर आउटडोर ठीक से उसने नहीं किया, स्ट्रक्चरल ठीक से उसका नहीं है, बिल्टअप नहीं है, या NGT भी है, वो सारी जिम्मेदारी वो जो है एसोसिएशन हैंड ओवर होने के बाद बायर पे डाल देता है. बायर पे अपफ्रंट, डिलीवरी बिकम्स अनसर्टेन. ओके, एंड देन मेजर इश्यूज फेस्ड बाय बायर्स. अब बायर को जब इशू क्या फेस होती है उसको भी हाईलाइट करता हूँ. लेट अस लुक एट रियल प्रॉब्लम फेस्ड बाय रेजिडेंट. आई हैव नोटेड डाउन. STP WTP नॉट फंक्शनल, नो प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट लीड्स टू पॉल्यूशन एंड टैंकर डिपेंडेंसी. आपका जो है वह इसमें वाटर माफिया भी आ जाएगा. आपका टैंकर कोई वाटर का सोर्स है नहीं, बोरवेल इज नॉट वर्किंग, सो नेचुरली द बिगर गेटेड सोसाइटी डिपेंड ऑन द वाटर टैंकर. तो उनके ऊपर चली जाए. जबकि शुरू में ये बोलता है कि आपके पास सफिशेंट पानी होगा, दिस इज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो फ्लैट बना के दे रहा है, वो STP और एग्जिट का जो भी है वो उसको देना है, बट वो सारी जिम्मेदारी पोजीशन के बाद बायर पे आ जाती है. फायर सेफ्टी रिस्क है. इनकम्प्लीट फायर सिस्टम कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. देन OC एंड CC डिले. विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लायंस सर्टिफिकेट लीगल ओनरशिप आपको बिल्डिंग की नहीं मिल पाएगी. लोन एंड रीसेल जो है वो गेट इफेक्टेड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस OC और CC. एमिनिटीज़ नॉट डिलीवर्ड प्रॉपरली. जो बोला गया था, लेट इट बी जिम, बास्केटबॉल कोर्ट और आपके जितने बिगर कोर्ट हैं, एमिनिटीज़ इंडोर और आउटडोर, वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है. स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटी कंसर्न, क्रैक्स और सीपेज, पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये आ जाती है. तो बिल्डर अब कंस्ट्रक्शन वाले को आप कहाँ से पकड़ेंगे जब आपने ये चीज़ें जो है बिल्डर ने जो है आपके ऊपर थोप के चला गया है. लीगल टाइटल इशू, लैंड डिस्प्यूट चलते रहते हैं. आप पोजीशन पे आ गए, इसके बाद भी कोर्ट केस चलते रहते हैं. नो प्रॉपर कॉर्पोरेट सिंकिंग फंड. कायदे में ये होना चाहिए कि बिफोर हैंडिंग ओवर द बिल्डिंग जितना भी सिंकिंग फंड है वो उस अपार्टमेंट को, न्यू एसोसिएशन को उसको देना चाहिए. वो नहीं देता है, वो अपने साथ ले जाता है. देन यू आर कैरी ऑन फाइटिंग एंड सम ऑफ द केसेस 3 to 4 ईयर लग जाते हैं. आपको कॉर्पोरेट नहीं मिलता है. जो इससे क्या होता है, सोसाइटी स्ट्रगल टू मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर हैंड ओवर.
दिस नॉट जस्ट इनकन्वीनियंस, दिस इज फाइनेंशियल इमोशनल इशू। एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड आइडियली हैपन वाई गवर्नमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली बिल्डर आता है प्रोजेक्ट लेके, उसको अप्रूवल रेरा का होता है, स्टेट का होता है। विदाउट दीज टू पावर सेंटर्स ही कैनॉट लॉन्च ए प्रोजेक्ट। लेकिन आइडियली होना क्या चाहिए, वो मैं बताता हूँ हियर। दैट शुड हैपन विद बिल्डर टू सो दैट सी बायर जिसका करोड़ ऑफ रुपीज लगा हुआ है वो सेफ रहे। इसमें कोई फुल लैंड टाइटल क्लियरेंस आपको बिफोर लॉन्चिंग बिल्डर का चेक होना चाहिए। द स्टेट एजेंसीज और रेरा शुड चेक, नो डिस्प्यूट, नो एम्बिग्यूटी। देन सेकंड नंबर पे आता है कंप्लीट अप्रूवल ऑफ एसटीपी, डब्ल्यूटीपी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एसटीपी का वाटर है वो कहाँ निकलेगा, कहाँ एग्जिट होगा, उसका ड्रेनेज सिस्टम पहले से ही जो है चेक होना चाहिए। इफ नहीं है तो उसको प्रोजेक्ट लॉन्च करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। डब्ल्यूटीपी भी पहले से चेक होना चाहिए। और आपका जो स्ट्रक्चरल क्लियरेंस है वो भी एग्जीक्यूशन के लिए रेडीनेस है ना, वो भी, अदरवाइज दे शुड नॉट बी गिवन अप्रूवल। फायर एंड सेफ्टी स्ट्रक्चरल कंप्लायंस वेरीफाइड एंड ऑडिटेड होने चाहिए बिफोर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट की। उसके पास तो सारा मैप है, कैसे वो इसको सिक्योर करेगा वो अप्रूवल होना चाहिए। ओसी एंड सीसी रेडीनेस बिफोर लॉन्च ये होना चाहिए। टाइमलाइन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन इन्फोर्समेंट होना चाहिए। फुली अब आते हैं आगे, फुली डिफाइंड एमिनिटीज़ प्लान होना चाहिए, क्या एमिनिटीज़ दे रहा है और कैसे वो बना के दे रहा है, इसका बिफोर लॉन्चिंग ये सब होना चाहिए। स्क्रो बेस्ड बायर पेमेंट होना चाहिए। फंड्स यूज्ड ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए फंड ले लिया उसने सपोज फॉर एक प्रोजेक्ट के लिए और उस फंड को उसमें ना लगा के वो अपने और दूसरे लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में लगाना है, उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। मैंडेटरी कॉर्पस और सिंकिंग जो फंड ट्रांसफ़र बिफोर सोसाइटी ट्रांसफ़र, जब ऐसा नहीं है कि बिफोर सोसाइटी को जब वो ट्रांसफ़र करने जाता है तो उसको ये फंड, चूंकि ये फंड बायर्स का है, उसके पास सोसाइटी के पास आना चाहिए। थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने बना के दे दिया, कोई बिल्डर ने बना के दे दिया, तो उससे पहले, प्री लॉन्चिंग से पहले थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को क्लियर करता हूँ कि गवर्नमेंट और रेरा का क्या रोल होना चाहिए। इन गेटेड कम्युनिटी जो बिल्डर है बेंगलोर में 1000 के जगह पे ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कर्नाटका गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रेंथन प्री लॉन्च वेरिफिकेशन। इसमें क्या है, प्री लॉन्च उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। नो पार्शियल अप्रूवल, कोई पार्शियल अप्रूवल नहीं देना चाहिए कि एसटीपी बनेगा, एमिनिटीज बनेगी, फायर सिस्टम बनेगा, नहीं, पहले सारा अप्रूवल उससे लेना चाहिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग आपका प्रोजेक्ट का ट्रैक, कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लायंस, ये गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए, रेरा को अपने हाथ में लेना चाहिए। एड होना चाहिए रेरा में ये रूल। स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज टू बिल्डर होना चाहिए, अगर वो नहीं करके दे रहा है तो विदाउट एनी पार्शियलिटी स्ट्रिक्ट पेनाल्टी उसके ऊपर होना चाहिए। बायर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को बहुत ही फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट की तरह उसको एक बनाना चाहिए कि जिसमें कि कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है उसको बहुत ही फास्ट ट्रैक से सॉल्व करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और पोर्टल सिस्टम होना चाहिए पर पब्लिक जो ग्रीवांसेस है, एक्सेस टू प्रोजेक्ट स्टेटस, जो बायर है उनको एक्सेस मिलना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट, कहाँ पर वायलेशन हो रहा है। अगर वायलेशन हो रहा है तो उसको भी रिकॉर्ड होना चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन भी गवर्नमेंट और रेरा, स्टेट गवर्नमेंट और रेरा के थ्रू होना चाहिए। देन मैसेज टू बायर, अब मैं आता हूँ बायर को के लिए भी मैसेज, सारा गवर्नमेंट और रेरा नहीं कर लेगी, आपका हार्ड एंड मनी है तो आपका भी रिसर्च वर्क है, आपको भी देखना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई ए प्रोजेक्ट इन फ्लैट इन बेंगलोर, आपका ड्रीम होम, आपका करोड़ ऑफ रुपीज़ यू आर गोइंग टू एक्सपेंड, सो वाई नॉट टू चेक वेरिफिकेशन ऑफ रेरा, वेदर इट इज़ रेरा रजिस्ट्रेशन, चेक लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट जो बाद में ना आप डिस्प्यूट में आए, इसलिए पहले चेक कर लो। कंफर्म ओसी सीसी स्टेटस, इंस्पेक्ट एसटीपी डब्ल्यूटीपी फंक्शनिंग, बिकॉज पूछिए आप उसको कहाँ इस पानी को निकालेंगे। आप विजिट करते हैं, प्री लॉन्च में जाते हैं साइट पे देखने, तो उसको पूछिए कहाँ ये पानी जब बन जाएगा, तो नाले तो है ही नहीं। आप खुद देख रहे हैं कि जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बुक कर रहे हैं वहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं है, तो वो पानी निकाल कहाँ से देगा, ये आपको पूछना चाहिए। एंड डिमांड रिटन कमिटमेंट फॉर एम्यूनिटीज़, और फिर अगर जो चीज़ें हैं वो बोलता है तो रिटन
कमिटमेंट उसकी हायर ऑफिशियल की सील के साथ आप उसको पूछना चाहिए, और देन ओनली मूव फॉरवर्ड। टॉक टू एग्जिस्टिंग रेजिडेंस, जो पहले के उसके प्रोजेक्ट में रेजिडेंस रह रहे हैं, कोई नया तो प्रोजेक्ट आप गेटेड में ले नहीं रहे, उनके बहुत से सिटी में प्रोजेक्ट है, वहाँ आप जाइए और बात करिए, और टेक द थिंग्स, नोट डाउन द थिंग्स व्हाट ही हैज़ नॉट डिलीवर्ड, आस्क हिम देन बिफोर बुकिंग। और लास्ट में कंक्लूजन मैं बताता हूँ आपको इसका। आप, ए होम इज़ नॉट जस्ट ए प्रॉपर्टी, it is a lifetime investment where you have invested crores of rupees, a dream, a legacy. Builder must be made fully responsible before they launch a project, not after buying the project. आफ्टर बाइंग आपको सफरिंग करने से कोई मतलब नहीं है, आप उसी समय बिफोर बाइंग आप ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं नोट डाउन कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज योर हार्ड एंड मनी है। आप अपने किसी कॉन्टेक्ट और फ्रेंड को ये बता सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला ये शेयर करिए इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड एंड कॉन्टेक्ट फ्रेंड, सो दे कैन बी अपडेटेड विद दिस इन्फॉर्मेशन। इट इज़ टाइम फॉर अकाउंटेबिलिटी, it is time for stronger enforcement, it is time to protect home buyers. If you agree, then share this video. Again, I am requesting to your friend and contact people so that they can be also updated with this information. How you like this video, let me know through comment box. And also thank you for watching and my channel, supporting my channel. I will meet again with the concern of the buyer who are dreaming to book a house to gated community, so that it can help to them in larger sense. So thank you once again. We will meet again.